चलिए, ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास आकाश इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। भाई पहले तो आप ऑनलाइन वाले कंफर्म करो आवाज आपके पास जा रही है कि नहीं जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन वाले कंफर्म कर लो आवाज आपके पास जा रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा। ऑनलाइन वाले फ्रेंड्स कंफर्म कर लो आवाज जा रही है आपके पास। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अपने बात कर रहे थे मैट्रिसेस पे। कहाँ पे बात कर रहे थे अपने? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपका लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ था, जिसमें अपने बात किए थे मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, रो एंड column of matrix, and after that types of a matrix। तो एक बार उसको रिकॉल करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स is an ordered rectangular arrangement of numbers, functions and variables। आपने बताया था। नेक्स्ट आपने क्या बोला कि सर द हॉरिजॉन्टल लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, the horizontal listing of elements are called the rows of a matrix, and the vertical listing of elements are called column of a matrix। Then after that we will talk about order of a matrix। Order of a matrix is defined as number of rows by number of columns, and when we find the product of number of rows by number of columns, this is equals to the total elements present in that matrix। After that we will talk about a topic construction of a matrix। In that topic the order of a matrix is given and a rule or function for the elements of matrix is also given, and we have to find the total matrix or a definite element of a matrix। After that we will discuss about the types of matrices। We will discuss about the types of matrices। Then first of all we will discuss about row matrix। Row matrix means sir matrix in which there will be only one row, and the order of the row matrix is written in the form of 1 by n, in which n denotes the column of the matrix। Second one, column matrix। Column matrix is that matrix in which there will be only one column, and the order of the column matrix is represented by n by 1, in which n is number of rows present in that matrix। matrix में रो कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। After that we will discuss about square of a matrix, sorry square matrix। square of a matrix अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे when we talk about the multiplication of a matrix। square matrix वाली पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स in which number of rows is equal to number of columns, जिसमें number of row और number of columns दोनों इक्वल हो उसको अपने बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। and in square matrix there are 2 or 3 different matrices in which we talk about। first one is diagonal matrix। first one is diagonal matrix। diagonal matrix is also a square matrix in which all non-diagonal elements are equal to 0। जितने non-diagonal elements हैं वो आपके क्या होने चाहिए? 0 के इक्वल होने चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स में आपने बात की होगी ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम जो होगा वो क्या बोला जाएगा? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आपने क्या पढ़ा था सर? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स व्हिच मींस इट इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, मींस स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जिसमें diagonal elements, sorry for that, diagonal elements are equal, non diagonal elements are 0। वो भी इक्वल ही होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0, और डायगोनल एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे।
आफ्टर दैट स्केलर के बाद आपने बात की थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन विच इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स एंड अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। डायगोनल एलिमेंट्स आपके किसके इक्वल होंगे? 1। लास्ट में आपने बात किया था सर नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, in which all elements are 0 and it is not compulsory that the null matrix is a square matrix। ऐसा जरूरी नहीं है कि null matrix स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जबकि ऊपर के जितने हमने पढ़े स्क्वायर के बाद वो सबके सब स्क्वायर हो ऐसा जरूरी है। बात समझ गए? नेक्स्ट अपने वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम, और एक टाइप का मैट्रिक्स आपके आएगा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपने वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां अपना लास्ट लेक्चर ओवर हुआ था, अपने लिखेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा वो बात आप ध्यान में रखना। आपका आएगा भैया अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। क्या होगा आपका? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे सर? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो है सर, इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए, इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए एंड we assume that the order of the matrix A is 3/3। ऐसा हम कर लेते हैं कि मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है? 3/3। आप 2/2 भी रख सकते हो। बात समझ रहे हो ना? तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में अपने सर लिखते हैं 1 2 3 एंड दिस वन विल बी 0 4 5 और यहाँ आएगा 6 और ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे? 0। बात समझ पाए? अब इसमें आप क्या देख पाओगे, क्या आप ऑब्जर्व कर पाओगे? सर एक जो एलिमेंट 0 नहीं है, जो एलिमेंट 0, द एलिमेंट्स विच आर नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर्म अ ट्राइंगल। जो एलिमेंट आपके 0 वो एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन करते हैं नहीं ट्राइंगल? और वो ट्राइंगल मैट्रिक्स के किस पार्ट में आ रहा है? इन द अपर पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसको अपने क्या बोलते हैं? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ पाए? देखिए इसी चीज को क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्सेप्ट तो अपने समझ गए, वो क्वेश्चन में आएगा कैसे और उस क्वेश्चन को समझेंगे कैसे अपने, मेन कॉन्सेप्ट तो ये है। अपने तो 25 क्वेश्चंस के लिए यहाँ बैठे हैं, कॉन्सेप्ट हमको सीखना है, तो क्वेश्चन भी पे अप्लाई कैसे होगा वो भी तो सीखना होगा। तो आपने क्या बोल दिए सर, मैट्रिक्स आपने देखा वो क्या है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और ट्राइंगल कहाँ बन रहा है आपका? ट्राइंगल मैट्रिक्स के अप साइड, ऊपर के साइड। तो आप क्या देख पा रहे हो सर, ये बाकी के एलिमेंट क्या हो गए? 0। ठीक है, अब क्वेश्चन में किस टाइप से देगा वो देखो। अगर आपसे इस एलिमेंट का एड्रेस पूछा जाए, इस 0 का एड्रेस पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे? सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम A21। 0 का एड्रेस पूछा जाए तो क्या होगा? A21 मींस सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर सर इसका एड्रेस पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? A3। इसका एड्रेस पूछा जाए A32। और बाकी का इधर देखो, अपने इसका एड्रेस पूछे तो क्या बताओगे आप? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसका एड्रेस पूछे तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक इसी टाइप से ये क्या होगा? फर्स्ट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ये होगा आपका सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, और ये क्या आएगा आपका? थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा वो आप समझो कि सर कौन सी मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो अगर अपने एक बात यहाँ से ऑब्जर्व करें, अपने एक बात क्या करें यहाँ से ऑब्जर्व करें, सर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में जहां पे I इज ग्रेटर देन J, I इज ग्रेटर देन J, मतलब इस एलिमेंट को देखो AIJ में अगर अपने बात करें, कंक्लूजन आपके पास क्या आएगा? अगर अपने बात करें AIJ, किसकी बात करें? AIJ 0 है। AIJ क्या है? 0। कहां पे? When I is greater than J, when I is greater than, इस टाइप से पूछेगा। A मैट्रिक्स A is equal to AIJ
in which aij is equal to 0 when I is greater than j, then which type of matrix it is? ये किस टाइप का मैट्रिक्स है? देखो यहाँ पे क्या है, I is equal to j है, a11 means I is equal to j, a12 means I is less than j, a13 means I is less than j, a22 means I is equal to j, a23 means I is less than j, a33 means I is equal to j. But जहाँ पे I is greater than j, I is greater than j, मतलब यहाँ a21 में क्या है, I is greater than j, a31 में क्या है, I is greater than j, I is greater than j, वो एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए। तो अगर ये आपको देखिए, हम चाहते तो आपको डायरेक्ट यही बता देते हैं कि aij is equal to 0, I is greater than j, then this type of matrix is upper triangular matrix। हो सकता फिर आपको बातें इतनी क्लियर ना होती। अब आप ऐसे है तो एक मैट्रिक्स ड्रॉ करके इस चीज को फाइंड कर सकते हो। सर अपर में ट्रायंगल बनाना है, बाकी के एलिमेंट को 0 रखना है। ओके, तो aij is equal to क्या हुआ, 0 and I is greater than j। अगर ऐसा कंडीशन बनेगा तो मैट्रिक्स किस टाइप की होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। मतलब अ मैट्रिक्स A is equal to aij in which aij is equal to 0 when I is greater than j, then which type of matrix it is? We indicate that it is a upper triangular matrix। आपके MCQ में ऐसे ही पूछेगा, a matrix A is equal to aij n cross n, then which type of matrix it is? तो आप क्या बताओगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। n क्रॉस a मींस क्या हुआ, n क्रॉस n मींस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ गए ना? आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर, जनरल ऑर्डर क्या होगा सर, 1/n। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे अगर यहाँ से आएंगे। तो अगर अब आप कोई पूछे आपसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो आप कहोगे अ मैट्रिक्स ए, लिख भी देते हैं अपने, आप लिख सकते हो अ मैट्रिक्स A is equal to, आपको पता है ना मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अ मैट्रिक्स A is equal to aij in which aij is equal to 0 when I is greater than j। A matrix A is equal to aij in which aij is equal to 0 when I is greater than j is called upper triangular matrix। इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, समझ में तो आ ही गया होगा। ऐसा आप लिख भी दो, इज नोन एज upper triangular matrix, is known as upper triangular matrix। ओके, नेक्स्ट आपका आने वाला क्या है सर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज लोअर ट्रायंगुलर। सीधी सी बात है, इस बार ट्रायंगल कहाँ देखने को मिल रहा है, अब हाँ, तो अगली बार ट्रायंगल कहाँ देखने को मिलेगा, लोअर में। तो अपने बात कर लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। किसकी बात कर लेते हैं अपने, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट वन इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? क्या करते हैं भैया, एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं A इज इक्वल टू, और फिर से वही 3/3 ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बातें आपको थोड़ी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ अपना क्या होगा, ध्यान से देखना, ट्रायंगल कहाँ बन के आएगा सर, इस पार्ट में बन के आएगा। ट्रायंगल कहाँ बन के आएगा, इस पार्ट में। बात समझे? इसका मतलब सर यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ बाकी के एलिमेंट क्या हो गए, 0। हम आपको लिखने का भी तरीका बता देते हैं कि आप लिखोगे कैसे। अब जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 ही लिखा जाए, कॉस अल्फा साइन अल्फा भी आप लिख सकते हैं। सिर्फ मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि सर ऊपर वाले 0 रख देना आप, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो सर ये एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो
सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड। सर ये एलिमेंट क्या है? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये एलिमेंट क्या है? सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे आप देखने जाओगे तो सर कौन से एलिमेंट जीरो है? वेयर i इज लेस देन j, वहां पे था i इज ग्रेटर देन j, यहाँ पे क्या है? i इज लेस देन j। तो यहाँ a11 आएगा मतलब i इज इक्वल टू j, यहाँ a21 आएगा i इज ग्रेटर देन j, a22 आएगा i इज इक्वल टू j, a31 i is greater than j, a32 i is greater than j and a33 i is equal to j। सर मतलब अपने लोअर ट्राइंगुलर का कंडीशन क्या लिखेंगे? a i j is equal to 0 whenever, कब जीरो? a i j जीरो होगा when i is less than j, when i is less than, i की वैल्यू अगर j से कम है तो a i j क्या होगा? जीरो होगा। ऐसे मैट्रिक्स को अपने क्या बोलते हैं भैया? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, लिख लोगे अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A I J is called a lower triangular matrix, is called a lower triangular matrix in which aij is equal to 0 when I is less than j, aij is equal to 0 when I is less than j। ओके, अब देखिए इसके बाद आपके पास क्या है? हमारे पास आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नल पोटेंट मैट्रिक्स एंड इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। मतलब 5-6 टाइप। और उसके बाद तो और आता है, हम लोग जब JEE का लेक्चर लेते हैं तो हार्मिसन एंड स्क्यू हार्मिसन, लेकिन वो आपके बहुत ऊपर चला जाएगा, उसको हमको जरूरत नहीं। जरूरत अपने को कितनी है? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। अब जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे तो हमको जब व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जब अपने किसकी बात करेंगे? मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की, देन वी विल डिस्कस अबाउट द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस समय हम क्या बात करेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी, उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो भी अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद जब अपने ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में जब अपने बात कर लेंगे किसकी? मल्टीप्लिकेशन, तो बात करेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स एंड नल पोटेंट मैट्रिक्स। वहाँ मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है। तो अभी हम आपको बता दें, और मल्टीप्लिकेशन तो अभी आप सीखे नहीं हो तो उसका कोई मतलब निकलेगा, पढ़ेंगे तरीके से अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी बातों में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हो सर ये बात हमको समझ में नहीं आई। अपने मैसेज करिएगा भाई, आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी हैं हमारे, वो आप मैसेज करिए अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो। देवांशी, अदिति, कोई भी प्रॉब्लम हो, विश्वा, आप तुरंत मैसेज करना, सर ये बात समझ में नहीं आई, एक बार रिपीट करो, आप अपने तुरंत बताएंगे। जितने हैं अपने ऑनलाइन में सब भाई मैसेज करना। आपको लगता हो कि सर कोई टॉपिक दोबारा से रिपीट करनी है, कोई मैट्रिक्स आपको ना समझ में आया हो तो आप बोलना भाई, मैसेज कर देना आप। अदिति, देवांशी, विश्वा, जानवी। चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक। अब इतनी तो बात आपको समझ में आई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होने वाला है? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। क्या है आपका? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस पे अपने ऑपरेशंस करने का मीन्स क्या हुआ? देखिए ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन मतलब आप उल्टा ही समझ लो भाई। ऑपरेशन मीन्स हुआ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में अपनी दो बात सीखनी है, मेन तो दो सीखनी है,
एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कैसे होता है। और आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट उनके कंडीशंस को पूछा जाएगा। आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा, डायरेक्ट उनके कंडीशंस को पूछा जाएगा कि कब कौन सा मल्टीप्लाई होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना लिखते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। क्या लिखते हैं भी अपने, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। देखिए ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में हमने आपको क्या बताया, अपने पास तीन सीखने हैं। कौन कौन सा सर? एक तो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये तीन बातें आपको सीखनी है। उसमें से अगर अपने फर्स्ट बात करें कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, क्या बात करें अपने, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को आप ऐड कैसे करोगे सर? तो इसकी पहली तो कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक कंडीशन आएगा कि कभी भी दो मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ आर सेम ऑपरेशन, सेम प्रोसेस। एडिशन सब्ट्रैक्शन दो बातें नहीं होती। एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होती है, एक ही चीज है। सब्ट्रैक्शन इज द रिवर्स ऑर्डर ऑफ एडिशन। आपने पढ़ा होगा एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एंड सब्ट्रैक्टिव इनवर्स, क्योंकि वो है ही नहीं। हायर ऑर्डर पे अपने उसको पढ़ते ही नहीं। अपने पास सिर्फ दो ही ऑपरेशन में है, एक एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन। कभी आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इनवर्स पढ़ा? क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा कि सर डिवीजन का आइडेंटिटी हो या डिवीजन का इनवर्स हो? नहीं पढ़ोगे ना, क्योंकि मेन कितने ऑपरेशन अपने दो। जैसे लोग क्या समझते हैं सर, सब्ट्रैक्शन कोई अलग ऑपरेशन है। अगर आपके पास लिख दिया 7 - 5 तो लोग इसको क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन है ये। लेकिन इसकी जो रियलिटी है वो ये है कि एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स यहाँ पे क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ये इसकी रियलिटी। तो आप जानते रहो एडिशन अपने बात कर रहे हैं, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में आपकी फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। मैट्रिसेस क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने, तभी ऐड होगा और तभी सब्ट्रैक्ट होगा। अदरवाइज आप लिख देना नॉट पॉसिबल। अदरवाइज आप क्या लिख देना, नॉट पॉसिबल। देखिए आपका फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। जो भी मैट्रिक्स आप ऐड करोगे या जो भी मैट्रिक्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए। मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। सेकंड सर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड होगा या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। एक एग्जांपल अपने लिखते हैं कि सर अपने पास एक मैट्रिक्स लिख दिए 1 2 3 4 5 एंड 6 लिख दिए अपने, और अपने बात करें प्लस 2 4 5 8, और चलो अपने क्या कर देते हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस कर देते हैं जहां भी आ जाए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको कहाँ प्लस कहाँ माइनस ये सब भी आइडिया लगता रहेगा। ये भी माइनस ही होगा। ठीक है, अब अगर आपसे बोले कि सर इसको ऐड कर दो या आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सबसे पहले बताओ क्या करोगे आप, पॉसिबिलिटी चेक करोगे ना, सर ये पॉसिबल है या। तो ऑर्डर ऑफ
दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 रो और 3 ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में 2 ऑर्डर है, फर्स्ट 2 रो है फर्स्ट और सेकंड, और 3 कॉलम है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ऑर्डर आपका क्या होगा? 2/3। और दूसरे मैट्रिक्स में आप पाओगे कितने रो है? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? तो बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/। तो क्या ये पॉसिबल है? सर कहां से पॉसिबल होगा? ऊपर ही तो लिखा है। मैट्रिक्स कब ऐड होंगे? जब दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका मतलब ये कब पॉसिबल होगा? सर जब इसमें अपने कोई नया एलिमेंट ले आकर के लिखें और इसका ऑर्डर क्या बना दे? 2/3। इसका ऑर्डर क्या बना दे? 2/3, तब जाके एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं। उसके बाद सर ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा? सेम होने वाला है। बात समझ गए? सर फर्स्ट कंडीशन इज दैट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस विल बी सेम। मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। आगे आपसे कह रहे हैं कि ये दोनों ऐड कब होंगे? सर उनका ऑर्डर सेम होगा तो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखने को मिलेगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा? सेम ऑर्डर आने वाला है। अब करोगे क्या? सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लो। ये 1 किसके साथ ऐड होगा? 2 के साथ। तो आप लिखोगे 1 + 2। क्या लिखोगे आप? 1 प्लस, ये -2 किसके साथ ऐड होगा? -4 के साथ। -2 -4, तो आपके पास क्या आएगा? -2 -4। फिर ये 3 किसके साथ आएगा? 1 के साथ, तो आपका आएगा 3 + 1। ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे आप? सर 4 - 5, 4 - 5, तो 4 - 5 होगा। नेक्स्ट 5 + 8, तो 5 + 8 होगा। 5 + 8, आफ्टर दैट -6 + 6 हो जाएगा। -6 एंड +6, तो आपका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा भैया? सर 1 + 2 कितना होगा? 3। जनरल सी बात है। -2 -4 -6 होगा। 3 + 1 4, 4 - 5 -1, 8 + 5 13, -6 + 6 0। ये 0 है, इतना 0 है। ये आपका क्या हो जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ गए ना? एडिशन करने को बोलेगा या सब्ट्रैक्शन करने को बोलेगा तो आपको यही करना है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। वो भी बहुत आसान सी बात है। ठीक है, आपका क्या आएगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इतना तो समझ में आ गया ना? सर सबसे पहले आप ध्यान देना कि क्या सर उसका ऑर्डर सेम है? उसका ऑर्डर सेम है, नहीं तो आप तुरंत क्या करोगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लग जाओगे ना, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सर होगा कि नहीं होगा। जैसे क्या, एक एग्जांपल अपने अगर बताने चले तो आप ध्यान दो। मान लीजिए अपने क्या किए? सर एक मैट्रिक्स लिख दिए ए, एक मैट्रिक्स क्या लिखे अपने? ए, और यहाँ लिख दिया हमने 2 3 4 5। अल्टरनेट प्लस माइनस कर लो आप ना, अल्टरनेट प्लस माइनस आप कर लो। एक मैट्रिक्स अपने लिख दिए बी, अपने क्या कर लिए? बी। और बी में सपोज करो हमने लिख दिया कि 2 3 माइनस का 4 5, और क्या लिख दिया अपने? 8, और अपने लिख दिए 9। और हम आपसे बोले सर a + b बताओ। आप क्या बताओ? आप a + b। तो आप a + b बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि सर इसका ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2, और उसका ऑर्डर क्या है? 2/3। इसका मतलब इसका एडिशन पॉसिबल नहीं। समझ गए ना? और अपने डायरेक्ट क्या लिखेंगे?
नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। नहीं तो हमारे कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सर 2 को 2 से ऐड किए 4, -3 को -4 से ऐड किए -7 और इसको 0 मान लेते हैं, और यहाँ क्या लिख दिए 8, यहाँ 4 और 3 लिख दिए 7, -5 + 5 0, और यहाँ लिख दिए, और वो गलत करके चले। ठीक है, क्या वो भैया प्रोडक्ट में भी बताएंगे आपको, वहां भी कंडीशन क्या है। तो ये अपने क्या कर लेते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि अपने कंडीशन ही क्या पढ़े कि सर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तभी अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। उसका एक रीजन ये होता है कि ये मैट्रिक्स के जो रो और कॉलम होते हैं ना, ये आपको डिनोट करते हैं रिलेशंस डिनोट करते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये बात हम कहाँ करते हैं। अभी आप ये समझ लो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता कैसे, ये बात आपको समझ में तो आ गया होगा। नेक्स्ट आप देख लो, सर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, किसकी बात करते हैं अपने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये क्या है, तो सर अगर अपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो भाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा बताओ सर, बताते हैं अपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होने वाला है। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अपने एक मैट्रिक्स लिखते हैं A, ओके, we will write a matrix A। मैट्रिक्स A अपने लिख दिए क्या सर, वही मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 and 4 5 6। if we want the scalar multiplication means as we have to write 5A, means 5 times of A, 5A, then this means we have to multiply the 5, we have to multiply the 5 by each and every element present in that matrix, okay। 5A means we have to multiply the 5 in each and every element present in that matrix। उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं आपके पास, उसमें किसका मल्टीप्लाई कर लो आप, 5 का। तो सर 5 इज मल्टीप्लाइड बाय ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। दिस मींस सर 5A is equal to 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 25 and 30। This is the value of 5A and this is also called the scalar multiplication of matrices, okay। Next, if we have to write the negative means we have to multiply -1, if we have to write the -A means sir -1 into A, -A means क्या हुआ, -A into A, we have to write -1 and we have to multiply 1 2 3 4 5 and 6। the resultant matrix is -1 -2 -3 -4 -5 and minus। this is called the scalar multiplication of matrices, okay। समझ में तो आ ही गया होगा। if we have to multiply, we can also see at some places there will be this type of product, that is lambda times of A, lambda times of A। this means we have to multiply the lambda by each and every element of matrix A। A के मैट्रिक्स से क्या करो, सबके जितने भी एलिमेंट है सब में लैम्डा का मल्टीप्लाई कर लो आप, सब में क्या कर लो आप, लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा सर, लैम्डा टाइप्स ऑफ A means we have to multiply the lambda by each and
एवरी एलिमेंट दैट इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई किए तो लैम्डा, 2 से किए तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये क्या हो जाएगा 5 एंड 6। इसी को अपने बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। समझ गए भैया आप? ये आपका क्या होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो आप, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं है, इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं। सर वो जो एडिशन है एडिशन वाला चेक करो भाई, आप लोग ऑनलाइन में जितने हैं देख लो। अब आवाज जा रही है? चेक करके भाई मैसेज करके आप कंफर्म करो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। विश्वा, जानवी, देवांशी, ओके। Sir, if we have a matrix A 7, minus 8, 9, minus 10, 11 and 12, and B 1, minus 2, 3, 4, 5 and minus 6. If we find A minus B, this means A minus of B. A minus of 1, minus 2, 3, 4, 5 and minus 6. अभी हम आपको बताए क्या कि सर A माइनस बी मीन्स क्या हुआ A प्लस ऑफ माइनस बी, A प्लस ऑफ माइनस, और माइनस बी अपने कैसे फाइंड करेंगे सर? यार देखिए A था, A से माइनस A लिखे कि नहीं लिखे? ये माइनस क्या किए अपने ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दी। ये माइनस क्या किए अपने ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दी। बात समझ गए ना? तो सर जब अपने यहाँ पे लिखेंगे तो क्या करेंगे सर? A प्लस ऑफ माइनस भी आपका कंफ्यूजन ही यही था, तो 7 माइनस 8 9 माइनस 10 11 एंड 12, और प्लस करके अगर इसको अपने माइनस भी कर दें आपका कंफ्यूजन वहीं खत्म हो जाएगा। और माइनस भी करने का मतलब क्या हुआ? वी हैव टू मल्टीप्लाई माइनस विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो आपका क्या हो जाएगा सर? ये -1 प्लस 2 प्लस का 2 माइनस 3 माइनस 4 5 माइनस में होगा और 6, आपका क्या हो जाएगा? चेक कर लेना आप एक बार। तो ये हो गया, अब तो कंफ्यूजन नहीं ना? ओके, तो आप लोगों को तो कंफ्यूजन हो तो मैसेज कर देना आप। प्लस में नो चेंज इफ वी हैव टू। अगर ऐसा प्लस के बिना डायरेक्ट माइनस से करेंगे तो चलेगा? चलेगा।
चलेगा, लेकिन आपको हम कंफ्यूजन था उसको दूर करने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा किए। बाकी हम क्वेश्चंस जब करवाएंगे, अभी तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बता रहे हैं। अभी तो अपने कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन तो मिनिमम अपने प्रैक्टिस करेंगे, यही पे प्रैक्टिस करेंगे। तो जो थोड़े बहुत कंफ्यूजन रहेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स। अगर हम डायरेक्ट आए और आपको क्वेश्चन कराने लगे तो हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, सर ये कहाँ से क्या हो गया। बट व्हेन वी लर्न द कॉन्सेप्ट्स एंड आफ्टर दैट वी प्रैक्टिस द क्वेश्चन, देन इट इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर अस। वो अपने लिए ज्यादा सही होगा, और अपने लिए प्रैक्टिस ही मेन है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो बहुत हो गया, लेकिन रिजल्ट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिवीजन। आप रिवीजन कितना करते हो, प्रैक्टिस कितना करते हो, उसी पे रिजल्ट आपका डिपेंड करता है। और प्रैक्टिस की एक कहानी हमारे ऑनलाइन वाले मित्र भी सुन ले। प्रैक्टिस की एक कहानी हमको बताई गई थी जब हम पढ़ रहे थे, उस समय की कहानी है। एक स्टेज लगा और उस स्टेज पे एक, आप भी सुने होंगे क्योंकि आप नए दौर में हो, हम पिछले की कहानी बता रहे हैं तो आप भी जानते होंगे। एक नींबू ला के रखा गया, लेमन जिसे आप बोलते हैं, और उसको निचोड़ दिया गया। तो एक पहलवान आया, मतलब रेसलर जो एकदम अपने पे कॉन्फिडेंस है उसको कि मुझसे ज्यादा मजबूत कोई है ही नहीं, आया और उस नींबू को क्या किया, निचोड़ के रख दिया। और वो जितने बैठे मेंबर्स हैं उनको क्या किया, चैलेंज किया कि अब इसमें से अगर कोई भी 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस देगा हमको, तो उसको हमारी तरफ से जो बोलेगा वो इनाम मिलने वाला है, वो रिवार्ड्स उसको मिलने वाले हैं। तो उस बड़ी भीड़ में से एक दुबला पतला उठा और निकल के आया, तो लोग भी हंसने लगे कि भाई उस रेसलर ने जिसकी बॉडी इतनी है वो जब निचोड़ के रख दिया, तो ये दुबला पतला इंसान कहां से निकालेगा इसमें से। वो आया और नींबू जो निचोड़ी गई थी उस नींबू को उठाया और मस्त जब ड्रॉप गिराया तो एक क्या, उसके हाथ से तो 4 से 5 ड्रॉप्स गिर गए। अब पूरी पब्लिक भी हैरान और वो रेसलर भी चौंक गया, मतलब ये चीज हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हुआ। तो उससे पूछा बड़े हैरानी के साथ, चलो आपका रिवार्ड्स तो आपको मिलेगा, आपका रिवार्ड्स तो आपको, बट हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हुआ। वो बोला ऐसा कुछ नहीं है, हमारी प्रैक्टिस है। हम ट्रेन में चना बेचते हैं तो हमको पता है कि नींबू का एक एक ड्रॉप कैसे निकालना है। तो होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की बहुत सी कहानियां हैं, आप सुनोगे ना तो देखो, आजकल तो आप लोग नेट वगैरह पे आप हो ही, तो तमाम कहानियां आप सुनते होंगे, बट प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल अपने चले आते हैं टॉपिक पे, और टॉपिक पे अपने क्या बात कर रहे थे भैया, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बोलो, और हमारे ऑनलाइन वाले मित्र अगर आपको दिक्कत हो तो आप मैसेज करो, नहीं तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑनलाइन वाले मित्र हमारे फटाफट कंफर्म कर दो भाई, आप मैसेज करके आप कंफर्म कर दोगे आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके सर, अपने नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है जिसको थोड़ा आराम से और धीरज रख के पढ़ते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सर, अब तक अपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ते थे, अब तक अपने क्या पढ़ते थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ते थे, बट अब अपने क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना।
अभी तक स्केलर मल्टीप्लिकेशन था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मींस किसी एक कांस्टेंट का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे, और उस कांस्टेंट का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मींस हुआ कि वी हैव टू मल्टीप्लाई द कांस्टेंट विद द ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट मैट्रिक्स। नाउ we have to learn how we have to multiply the matrix by matrix। जब दोनों क्या हो, मैट्रिक्स ही हो, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अपने बात करें अगर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, तो देखिए इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए, इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए, और ए मैट्रिक्स को हम लिखते हैं 1 2 एंड 3 4 5 एंड। अब इसका ऑर्डर क्या होगा भैया, 2/3, 2/3 ऑर्डर तो यही होने वाला। सेकंड आपका बी, बी आपका है सर 7 8 9 10 11 एंड 12। और थोड़ा सा देखने देना भाई, ये पॉसिबिलिटी आएगी नहीं, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसको अपने उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं सर। अपने लिखते हैं 3 4 5 6 1 5, ऐसा लिख दिए मैट्रिक्स। ठीक, इसका ऑर्डर क्या है भैया, 3 रो एंड 2 कॉलम। देखो एक मैट्रिक्स आपने लिख दिया ए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आपने क्या लिखा 1 2 3 4 5 6, एंड मैट्रिक्स बी आपने लिखा 3 4 5 6 1 एंड 5। अब आपसे कह रहा है सर इसको मल्टीप्लाई करो आप। अगर आपसे कहता सर एडिशन करो, तो आपका रिजल्ट क्या आता, नॉट पॉसिबल, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस आर नॉट सेम। मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं, इसलिए पॉसिबल नहीं। आपसे कह रहा मल्टीप्लाई करो, तो सर इसका मतलब ये मल्टीप्लाई तो होगा, मल्टीप्लाई तो, और मल्टीप्लाई का 2 कंडीशन है आपके पास, वो दोनों कंडीशन आप याद कर लो। कौन सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी और कौन सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। फर्स्ट कंडीशन है सर, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, ये आपस में इक्वल होने चाहिए। आपस में क्या होने चाहिए, इसीलिए जब अपने फर्स्ट मैट्रिक्स लिखे थे इसके पहले, उसको हमने इरेज करके दूसरा लिखा, क्योंकि वहां नंबर ऑफ रोज कितने थे 2, और नंबर ऑफ रोज 2 होने का मतलब हुआ कि सर 2 रो और 3 कॉलम है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं। तो प्रोडक्ट में फर्स्ट कंडीशन आपका क्या है सर, फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो, ये आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। बात समझ गए। तो नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो नहीं भाई सॉरी कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम नंबर है इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। बात समझ पाए भैया, समझे कि नहीं समझे आप। सर नंबर ऑफ कॉलम जो फर्स्ट मैट्रिक्स की है वो नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज हम क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। अदरवाइज अपने क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। वो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा कब, जब नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है सर, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। क्या आपका ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट, अगर आपसे बात करें कि ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर ये आएगा 2/2। क्या आएगा 2/, और 2/2 होने का मीन्स क्या हो गया कि नंबर ऑफ रो प्रेजेंट इन फर्स्ट मैट्रिक्स बाय नंबर ऑफ कॉलम प्रेजेंट इन सेकंड मैट्रिक्स। बात समझ गया, क्या है, नंबर ऑफ रो प्रेजेंट इन फर्स्ट मैट्रिक्स बाय नंबर ऑफ कॉलम प्रेजेंट इन सेकंड मैट्रिक्स। तो दो चीजें अभी आप सीख लिए, क्या
कि सर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, कि सर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कब ये पॉसिबिलिटी होगी? सर जब पहले का कॉलम नंबर और दूसरे का रो नंबर इक्वल हो। नंबर ऑफ कॉलम प्रेजेंट इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन सेकंड मैट्रिक्स, तो पॉसिबिलिटी है। सेकंड क्या आपने कहा कि सर उसका ऑर्डर क्या आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा भैया बताओ? सर नंबर ऑफ रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स बाय नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। और ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जल्दबाजी में पढ़ना ठीक नहीं होगा, और आज का टाइम आपको जवाब दे रहा है, ठीक है। तो अपने बहुत आराम से नेक्स्ट लेक्चर जब भी अपने मैथ्स का होगा उसमें इसकी चर्चा करेंगे, और इसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी होगी, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और मैट्रिक्स में ही नहीं मिलेंगे, इसके क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका डिटरमिनेंट्स, वहां भी ये मिलने वाला है। तो अभी बस अपने इसी पे इसलिए रोक देते हैं कि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन दो ही कंडीशन है। फर्स्ट क्या है सर? फर्स्ट का कॉलम नंबर और सेकंड का रो नंबर इक्वल होना चाहिए, और सेकंड है सर उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? तो सर फर्स्ट का रो नंबर और दूसरे का कॉलम नंबर जो होगा उसी के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। इतनी बातें अपने आज के लिए रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, और फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के साथ साथ फिर मैट्रिक्स का क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे अपने, ठीक है। अभी जितने कॉन्सेप्ट दो लेक्चर में बताए गए वो आपके क्लियर हैं? कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है सर ये बात हमको समझ में नहीं आई? सबका क्लियर है ना? हमारे ऑनलाइन वाले फ्रेंड्स जितने हैं भाई, दो लेक्चर में जो आप पढ़े उसमें कहीं डाउट आपको? अभी अपने क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो ओनली अपने कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं। ओके चलिए फिर आज का एंड करते हैं। सर इनवर्स मैट्रिक्स है, यस सर बताएंगे आपको।